Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start theorem 9.1 for grade 10. Okay, theorem 9.1 and statement is one and only one circle can pass through three non-collinear points. So first of all, what is non-collinear points? A point which does not lie on a line. Like for example, we have a point this A, B and C. This is non-collinear points and we are going to prove that one and only one circle can pass through these points. So let A, B, C are three non-collinear points. So given three non-collinear points A, B and C. These are three non-collinear points. Or prove one and only one circle can pass. So means K through these three non-collinear points, one and only one circle can pass. So means K like this, not more than one. So we are going to prove that. Okay. So to prove, it's given and prove one and only one circle can pass through three points, and these are non-collinear points, or you can write through three non-collinear points. That is A, B and C. So we are going to prove that. Okay. Now we have a circle. So let we take three non-collinear points. This is A, B and C. These are three non-collinear points and we prove that one and only one circle can pass. Okay जी, construction. Okay, जो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइंट A to B and B to C and bisect A, B and B, C. Draw the perpendicular bisectors. So perpendicular bisector means bisect बिल्कुल इसका मिड पॉइंट पे ये bisect होगा, ठीक है. So draw the bisector. This is the bisector of BC. And this is the bisector of AB. Okay, both the bisectors cut at point D. This is the D point and this is E point.
Okay. AB cut the bisector of AB cut AB at point D, and the bisector of BC cut it at point E. Okay. Then after that, join both the bisector cut at point O. Okay, label it as O. This is O point, जिसमें दोनों के बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को कट किया है. ठीक है, इस O पॉइंट को आपने क्या करना है, फिर ज्वाइन कर देना है ए बी सी के साथ. ठीक है, इसको आपने ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है, बी के साथ भी और सी के साथ भी. ये हो गई कंस्ट्रक्शन. तो ये मैं, चूंकि ये डॉटेड फॉर्म में करनी होती है, बट मैं यहाँ आपके लिए इस तरह कर रही हूँ ताकि डायग्राम क्लियर हो गए. ओके जी, कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन A to B and B to C. ठीक है, ये किया था. Then bisect AB at D and BC at E. So bisect AB at D and BC at E. So both the bisector cuts each other at point O. Look, जैसे बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो हमें ये O पॉइंट मिला, और फिर उसके बाद हमने उस O को A, B और C के साथ ज्वाइन कर दिया. सो ज्वाइन O to A, B and C. ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन. अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ. ओके जी, प्रूफ की तरफ आ रहे हैं अब हम. ठीक है, सो अगेन लुक, जब हमने इस O को A, B और C के साथ ज्वाइन किया, सो 4 ट्राइंगल्स आर फॉर्म. ठीक है, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो ये यहाँ पर हमारे पास एंगल बनते हैं 90 डिग्री के. ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है. एक तो उसने बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स कि ये साइड और ये साइड इक्वल है. ठीक है, और यहाँ इस बाइसेक्टर ने भी इस जो BC है इसको बाइसेक्ट किया है एट पॉइंट E पे. ठीक है, ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट था. ठीक है, सो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री के एंगल्स. So first we are going to take these two corresponding triangle OAD corresponding with ODB. ठीक है, let's D point थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये D point. ठीक है, so we taking two corresponding triangle AOD corresponding with triangle BOD. Now make them congruent. अब हम इन दोनों को करेंगे congruent. ठीक है, सो उसमें सबसे पहले तो चूंकि ये देखो बाइसेक्ट कर रहा था, आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, सो ए डी कॉन्ग्रेंट है डी बी के. ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी. ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी. फिर उसमें एंगल 1, यहाँ अगर हम 1 एंगल दे दें और ये 2 एंगल दे दें, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2. Angle 1 is congruent to angle 2. Both are right angles. ठीक है, और उसमें हम ये ले लेंगे OD is congruent to OD common side. So OD is congruent to OD. Common side आ गई. So common side है. So triangles are congruent.
triangle AOD is congruent to triangle BOD. ओके कौन से रिजल्ट से हमने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, चेक कर लें डायग्राम में। हमने ये साइड ली है, ठीक है, फिर हमने ये एंगल लिया और ये साइड, सो इट मेक्स SAS पोस्टुलेट। मीन्स कि ये देखें, ये हमारा ट्राइंगल था ना, ये हमारा ट्राइंगल था, ये A, ये D और ये O पॉइंट है। सो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल 1। तो हमने AD साइड लिए, लोग AD ये साइड ली है, फिर हमने एंगल 1 लिया, ठीक है, एंगल को डिस्कस किया है, और फिर हमने ये साइड कॉमन ली है। सो देखिए इट्स मेक्स एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, ठीक है। सो इट मेक्स SAS postulate, साइड एंगल साइड postulate. So with the help of SAS postulate, triangles are congruent. When triangles are congruent, so can we say OA is congruent to OB? ले सकते हैं that OA is congruent to OB. रीजन क्या आ जाएगी? Corresponding sides of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangles. ओके ये प्रूव हो गया। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है, इसको लेबल कर दें 1 इक्वेशन। ओके इसके बाद हम लेंगे सेकंड 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से? ट्राइंगल BOE कॉरेस्पॉन्डिंग विद OCE एंड मेक देम कॉन्ग्रेंट। अब हम उसमें इसको भी कॉन्ग्रेंट करेंगे। सो ट्राइंगल OBC corresponding with triangle OEB है, it's OEB corresponding with OEC कर लें। Now make them congruent, again वही look, BE congruent है EC के, और यहाँ हम लेबल कर लेते हैं 3 और 4 एंगल्स को, ठीक है। So BE is congruent to EC construction. Angle 4 is congruent to angle 3. So चूंकि OEB हम ले रहे हैं लोग, OEB में 3 आ रहा है, तो गलती से आपने 4 उस साइड पे नहीं लिखना है, आपने OEB की साइड पर OEB के एलिमेंट्स ही लिखने हैं, ठीक है। So angle 3 is congruent to angle 4. Both are right angles. OE congruent है OE के, कॉमन साइड OE is congruent to OE, कॉमन साइड आ गई। Okay, so triangles are congruent. Triangle OEB is congruent to triangle OEC. ये भी SAS postulate से हो गया, तो SAS postulate से दोनों triangles जो हैं वो congruent हो गए। Okay, जब ये भी triangle congruent हो गया, so can we say that OB is congruent to OC? OB is congruent to OC. रीजन क्या आ जाएगी? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, सो
रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, OA congruent है OB के and OB is congruent to OC. So according to transitive property, all these three sides are equal to each other. ठीक है, so वही रिजल्ट ले लेंगे. So according to transitive property, OA is congruent to OC. ठीक है, यहाँ आपने लिख देना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ओके. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखें, ये साइड और ये साइड भी आपस, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू OB. सो लुक, as we have the result that OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, so automatically OA is congruent to OC means that all these three sides are equal. So it means that OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, means that all these three sides are equal. So means that O is a center. O is a center of a circle because these are the radii of the same circle. The distance are equal. So when distance are equal from the fixed point, so means that there is a circle. So O is a center of a circle. So one and only one circle can pass through three non-collinear points. So here we complete this statement and prove it. When OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, means that O is the center of the circle. So means their distance from the center is equal. So one and only one circle can pass through three non-collinear points. तो यहाँ के हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वाचिंग. Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 9.2. A straight line drawn from the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. So we have a circle. So first we draw a circle with center O, where this is O is the center of the circle. This O is a center of the circle. ओके, दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर. तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की सेंटर से, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, सो मींस कॉर्ड विल बी देयर. सो ए बी इज अ कॉर्ड. ठीक है, कॉर्ड क्या है, सर्कल को जब 2 पॉइंट्स आप लेते हैं ना, ए और बी लाइन, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, सो दैट इज अ कॉर्ड. ठीक है, a line which touch the circle at 2 points is called chord. So where AB is the chord, और कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करें सेंटर से, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है. ठीक है, बाइसेक्ट मतलब कि ये ए एन का डिस्टेंस एन बी से इक्वल है, मीन ए एन इज इक्वल टू एन बी. ठीक है, ये हमने, ये गिवन है कि ये इक्वल है. सो अगर ये इक्वल है तो प्रूफ करो इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मीन्स इस लाइन के बारे में कह रहे हैं कि जो आप सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है. सो गिवन में क्या आ जाएगा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O where AB is a chord, ठीक है, AB chord है, and ON bisect
AB at point N. That is, AN is congruent to BN. ये गिवन हो गया. टू प्रूव क्या करना है? ओके, टू प्रूव आ जाएगा that this line ON is perpendicular to the chord. Is perpendicular to the chord means कि ON is perpendicular on AB. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये जो ON है इस AB पे परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर हमेशा याद रखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है. जब भी आप किसी भी पॉइंट से किसी की भी लाइन सेगमेंट पे, लाइक अगर ये पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट है AB, सो इस पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री बनता है. ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा. तो लेट मी प्रूव कि ये दिस ON is perpendicular on AB. So for this we are going to construct कंस्ट्रक्शन है. ओके, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इस O को A और B से ज्वाइन कर दें. ज्वाइन O to A and B. ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया. So join O to A and B. Okay, join करने के बाद look, two triangles are formed. First ONA and ONB. So two corresponding triangle बन गए. अब हमने इसको करना है congruent. ओके, स्टेटमेंट और रीजन से अब हम करेंगे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. सो फर्स्ट वी टेक ट्राइंगल OAN corresponding with triangle OBN. ओके, OBN एंड OAN ले लिया. इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे. तो सबसे पहले तो आप देखें, गिवन को देखें तो गिवन में हमारे पास था AN is congruent to BN. ठीक है, ये गिवन है. रीजन हमने दे देनी है, इट्स गिवन. ON is congruent to ON. कॉमन साइड. ठीक है, and OA is congruent to OB. OA is congruent to OB. And why these are congruent? Look, these are the radii of same circle. So it's the radii of same circle. अभी कैसे रेडियस है देखें. एक फिक्स पॉइंट होता है. ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से ही हम एक रेडियस लेते हैं ना, लाइक 2 सेंटीमीटर ले लें या जो भी रेडियस ले लें. So then we draw a circle. जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो चाहे जहां से भी आप ये रेडियस को चेक करें, ये 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ कर रहे होते हैं. तो रेडियस उसमें इक्वल. सो दीज आर द रेडियाई. ठीक है, सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल रीजन आ जाएगी. 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल OAN is congruent to triangle OBN. और रीजन इसकी क्या आ जाएगी? अब लोग देखें, तीनों साइड्स हैं. सो साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड. साइड की हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया. व्हेन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसमें हम यहाँ ले सकते हैं, इसमें हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं. ठीक है, 1 इसको कर दें और इसको 2 कर दें. So can we say angle 1 is congruent to angle 2? Corresponding
angles of congruent triangles. अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. सो अब चूंकि ये तो प्रूव नहीं हुआ कि ये दोनों 90 डिग्री भी है, जैसे कि हमने प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पे. सो लुक, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स गिव्स 180 डिग्री. अच्छा, यहाँ सबसे पहले हम 180 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखें, जब एक स्ट्रेट लाइन ये आप ड्रॉ करें, ये कह रहे हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90, कैसे है? अगर हम चेक करें तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री आता है. इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो 180 डिग्री बनाता है ये पूरा एंगल. ठीक है, तो अब ये अगर 180 डिग्री बना रहे हैं तो मीन्स कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है. एज एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिव्स 180 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इस फॉर्म में लिख लें कि एज measurement of angle 1 plus measurement of angle 2 gives 180 degree, and this is supplementary angle postulate. Supplementary angles postulate. Supplementary angle postulate क्या होता है? When two adjacent angles are supplementary angles, then their non-common arms lie on a line, and when non-common arms lie on a line of two adjacent angles, then such angles are supplementary angles. So that is according to the postulate. Angle 1 plus angle 2 दोनों straight line बना रहे, means के 180 is there. So जब 180 है तो अब यहाँ हम बात करें कि दोनों angles भी equal हैं, तो फिर 90 प्लस 90 आपको 180 देता है ना. जब आप 90 में प्लस करते हैं 90, देन यू गेट 180 डिग्री. सो इसका क्या मतलब कि बोथ आर इक्वल टू 90, मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों के दोनों जो है वो फिर 90 डिग्री हैं. अगर 90 डिग्री हैं तो 90 डिग्री कंफर्म्ड हो गया. सो इट्स मीन्स दैट ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ठीक है, सो 90 डिग्री तब बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. सो विच मीन्स कि ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. यहाँ आके हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें. ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम करेंगे 9.3. सो कीप वॉचिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थ्योरम 9.3. Perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it. So here again we have a circle. It is the converse theorem of 9.2, in which we are going to prove that when a straight line drawn from the center to bisect the chord is perpendicular to the chord. बट यहाँ हमने क्या करना है, टोटली उसका कन्वर्स है. अब यहाँ गिवन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ chord. So we have a chord. Look, first we draw the chord. Look, this is the chord. AB is a chord and perpendicular from the center of a circle. So let me draw the perpendicular from the center. This is perpendicular. This is O is the center. So this ON is perpendicular on AB. Proof क्या करने हैं? Bisect it means कि this line bisect this AB. ठीक? So given क्या आ जाएगा? Given में आ जाएगा a circle with center O. A circle with center O where AB is a chord and ON
is perpendicular on AB. ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, मीन्स के 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ हम 1 कर देते हैं और ये लेबल कर देते हैं 2। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ओके perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it, मीन्स कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ कर रहा है। सो प्रूव आ जाएगा दैट AN is congruent to BN। ये हमने प्रूव करना है, ठीक। अच्छा, अब प्रूफ करने के लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले तो इस सेंटर को, ये जो सेंटर है O, इसको हम ज्वाइन कर देंगे एस ए बी के साथ। ज्वाइन O टू A B, ठीक है, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। सो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी ज्वाइन O टू A एंड B। ओके, ये हमारी आगे कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं, चूंकि कंस्ट्रक्शन करने से अगेन वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स एंड दे आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म। OAN is corresponding with BOBN, ठीक। नाउ मेक देम कॉन्ग्रुएंट। ओके, प्रूफ पे जा रहे हैं, स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। सो सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल मेंशन कर देंगे। ट्राइंगल OAN corresponding with triangle BON या OBN। Okay, now make them congruent। ये 2 corresponding triangle हमने ले लिए। अब इसमें हमने सबसे पहले तो गिवन में देखे, हमारे पास गिवन में क्या था, that ON is perpendicular on AB, which means that angle 1 is congruent to angle 2 because both are right angles. So angle 1 is congruent to angle 2, both are right angles, ठीक है। Chords is given, ON is perpendicular on AB। ओके जी, सेकंड हम ले लेते हैं ON is congruent to ON, ON is congruent to ON, common side। Okay, after that we take OA is congruent to OB, OA is congruent to OB, same reason, radii of same circle, radii of same circle। Okay, अब ये देखिए 3 elements are completed, so triangles are congruent। OAN is congruent to triangle BOBN। अच्छा, both are congruent। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने देखें ये ट्राइंगल है ना, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल को लेके रिजल्ट देखा करें। ये हमारा एंगल 1 है, ठीक है, ये A है, ये N है और ये O है, ठीक। उसमें हमने ये साइड ली, हमने ये साइड ली है, ठीक है, हमने ये साइड ली है और हमने ये एंगल लिया है। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो वो हमारा साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड आ रहा है, लेकिन ये आपने हरगिज नहीं लेना, ठीक। मेक श्योर कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल, व्हेनेवर राइट ट्राइंगल इज देयर, दैट हाइपोटेन्यूज साइड विल बी देयर, ठीक है। सो द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज H। अब ये देखिए, हमने जो ट्राइंगल लिया है तो 2 साइड्स जो लिए हैं उसमें, तो एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। सो मींस कि ये 90 की ऑपोजिट साइड ये H साइड है, इसको H कहा जाता है। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज का H मींस हाइपोटेन्यूज साइड। और ये हमने एक साइड ली हुई है और 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, राइट एंगल सबसे पहले देखिए हमने मेंशन किया, और दोनों साइड्स हैं, दोनों में से ये जो OA और OB है, देखिए ये साइड और ये साइड जो है बोथ आर हाइपोटेन्यूज साइड। ये H है, ठीक है, और ये एक साइड आ रही है हमारे पास। सो इट मेक्स HS
is congruent to HS. ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि in a corresponding between two right angles triangle, hypotenuse side on one side is congruent to the corresponding hypotenuse side of one and side of the other, then the triangles are congruent. So जब भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो, मेक श्योर कि अगर आप टू साइड्स ले रहे हैं तो दोनों साइड्स में से कोई एक साइड हाइपोटेन्यूज साइड तो नहीं है। अगर है तो फिर आपने ये रिजल्ट में HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS लेना है, ठीक है। डोंट राइट साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड, ठीक है। इट्स HS रिजल्ट. So with the help of HS result, the triangles are congruent. When triangles are congruent, so can we say AN is congruent to NB? So AN is congruent to BN or NB. Corresponding sides of congruent triangles. तो यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है कि whenever perpendicular from the center of circle or on a chord bisect it, ठीक है। जब भी chord जो है पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर अगर है तो वो chord को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक। तो ये यहाँ के हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो से कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 9.4 for grade 10. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from center. Proof क्या करना है? Two chords हैं which are congruent and both are congruent, then they will be equidistant from the center. मतलब two chords अगर congruent हैं तो center से, where O this is a center of the circle, so ये equal है center से, ठीक है। So let we draw two chords. Congruent chords हम draw करेंगे. Let this chord is a line segment which touch the circle at 2 points. So this first, this is AB is a first chord. The second chord is okay, and the second is CD. A line which touch the circle at 2 points is called, ठीक है। Okay, these chords are equal in measurements. Proof that they will be equidistant from the center. So let this is the center of the circle. O is the center of the circle. So इस O से इस chord तक का distance और इस chord O से इस second chord तक का distance equal है, means कि ये दोनों chords center से equal distance पर हैं, ठीक। So ये हमने prove करना है। So given आ जाएगा, given में आ जाएगा जो जो डेटा में है, a circle with center O, a circle with center O, okay, where AB and CD are two chords, AB and CD are two chords, and they are congruent. That is AB is congruent to CD, ठीक है। ये given है। Proof क्या करना है? They will be equidistant. So to prove में आ जाएगा that AB and CD are equidistant, ठीक है। They will be equidistant means कि chords के बारे में कह रहे हैं। So AB and CD are equidistant
फ्रॉम सेंटर। और सेंटर क्या है? O। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए वी नीड द कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इस O से इस AB पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर। सो OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB and OF is perpendicular on CD। और दूसरा इस O को A और C से ज्वाइन भी कर देंगे। सो ज्वाइन O to A and C। ओके, अब ये देखिए परपेंडिकुलर मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का है एंगल है। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। सो यही बात आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने OE को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, एक मिनट, क्या आ जाएगा, O को A और C से ज्वाइन भी किया। सो ज्वाइन O to A and C और दूसरा ड्रॉ परपेंडिकुलर। सो ड्रॉ OE perpendicular on AB and OF perpendicular on CD। ठीक है, ओके। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम आ जाएंगे प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में अगर हम देखें सो वी हैव टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ हम जब बात करते हैं इन दोनों एंगल्स की, ट्राइंगल्स की, तो अगर हम लें ओ ए कॉन्ग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेने के बाद अगर हम लेते हैं ना, तो ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के। ठीक है, रीजन ये आ सकती है। ओके, दूसरा हम ले सकते हैं कि बोथ आर राइट एंगल्स। अगर यहाँ हम लेबलिंग करते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, बोथ आर राइट एंगल्स। लेकिन थर्ड एलिमेंट हमें नहीं मिलता कहीं से, ना तो हमें ये पता है कि ए ई कॉन्ग्रेंट है सी एफ के, इसकी कोई रीजन हमें नहीं पता। दूसरा ये हमने तो प्रूव करना है कि ओ ई जो है ओ एफ के इक्वल है, क्योंकि ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, मीन्स कि आपने जो है ये डिस्टेंस इक्वल करना है, तभी वो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कि ओ ई कॉन्ग्रेंट है ओ एफ के, ये हमने प्रूव करना है। तो अब जाहिर है यहाँ जब हम इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स को लेते हैं कॉन्ग्रेंट करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी रीजन हमें पता है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है जिसकी रीजन हमें पता हो कि इस वजह से ये कॉन्ग्रेंट है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेने से पहले हम एलिमेंट्स कोई ना कोई इसका एक प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, सो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है सेंटर से, सो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है। ठीक है, 9.3 थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उसी रिजल्ट को लेके आगे हम चलेंगे। ओके जी, यहाँ हम जब बात करते हैं कि O इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, स्टार्ट हम लेते हैं दैट O E is perpendicular on AB and OF is perpendicular on CD. OF is perpendicular on CD. ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। रीजन क्या आ जाएगी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है,
अच्छा, अब ये अगर परपेंडिकुलर है सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, मींस के ए बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए ई इक्वल है बी ई के। ए ई इज इक्वल टू ई बी। इसी तरह जब हम ये ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे तो इसका मतलब इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो सी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एफ डी। ठीक है, एफ डी के इक्वल है। रीजन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, इसी सिंबल है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन गिवन में हमारे पास क्या है, दैट ए बी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये गिवन है, इसकी रीजन क्या आ जाएगी, इट्स गिवन। ठीक है, इसकी रीजन ये आ गई कि ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहाँ चूंकि ए बी इज अ सम ऑफ ए ई प्लस ई बी एंड सी डी इज अ सम ऑफ सी एफ प्लस एफ डी, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं कि मेजरमेंट में ये जो ए बी है ये ए ई प्लस ई बी से मिलके बना है। ठीक है, इन दोनों का सम है ए बी। इसी तरह इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट को इक्वलिटी में अगर आप ले आए तो मेजरमेंट का साइन जरूर लगा लीजिएगा, मीन्स कि यहाँ भी हम मेजरमेंट ऑफ ई बी लिखेंगे इज इक्वल टू सी डी, किसके सम के इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एफ डी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दिस इज ये सेगमेंट की एडिशन है, लाइन सेगमेंट है, इसको ऐड करने से मींस के ए ई में जब हम ई बी ऐड करते हैं देन वी गेट ए बी, इसी तरह सी एफ में जब एफ डी ऐड करते हैं देन वी गेट सी डी। तो ये सेगमेंट की एडिशन है, सो इट्स सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। ठीक है, ये सेगमेंट की एडिशन है और ये पोस्टुलेट है हमारे पास कि जब भी आप टू लेंथ को ऐड करते हैं तो आपको होल लेंथ मिलती है उससे, तो दिस इज सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। ओके, आगे चलते हैं। जब ये इक्वल है तो यहाँ आप देखें ए ई प्लस ई बी है, यहाँ हमने क्या किया, ए ई इक्वल है ई बी के, तो इस ई बी की जगह हम ए ई लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस ई बी कैन वी राइट ए ई, मीन्स के मेजरमेंट ऑफ ए ई प्लस मेजरमेंट ऑफ ए ई लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस एफ डी की जगह, ये एफ डी की जगह हम सी एफ लिख सकते हैं, इसके यहाँ अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, मेजरमेंट ऑफ सी एफ। ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ सी एफ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये सी एफ, ये देखें ये हमने ए ई लिखा इसकी जगह पे और एफ डी की जगह हमने सी एफ लिखा है, बिकॉज ए ई इक्वल है ई बी के एंड सी एफ इक्वल है एफ डी के। इस वजह से हम इस एफ डी की जगह सी एफ और ई बी की जगह ए ई दोनों को सेम ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब ये देखो 1 और 1, ये 2 टाइम्स ऑफ ए ई हो गया, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ई
और इसी तरह ये 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी एफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब ऐड कर लिया हमने इक्वल वैल्यूज को। सो अब डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करके और करके आप यहाँ मेंशन कर दें, और measurement of AE is equal to measurement of CF. So हमने क्या किया, 2 को कैंसिल कर दिया, मीन्स के डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड कर दिए। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द रिजल्ट। अब चूंकि ये मेजरमेंट में है तो हम इसको कॉन्ग्रेंट में ले आते हैं। सो AE is congruent to CF। ठीक है, ये हमने ले लिया रिजल्ट। अब ये देखें, ट्राइंगल पे आप जाएं तो ट्राइंगल में AE कॉन्ग्रेंट है CF के, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। अब हम इसको अप्लाई करेंगे 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेकर, उसमें ये एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे। सो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ लेंगे 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल OAE corresponding with triangle OCF. So we take these two triangles OAE corresponding with triangle OCF. Now make them congruent. इन दोनों को हमने करना है congruent। अच्छा, कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले हम ले सकते हैं OA is congruent to OC, OA is congruent to OC, radii of same circle, okay, angle 1 is congruent to angle 2, both are right angles। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और AE is congruent to CF, AE is congruent to CF, ये हमने प्रूव किया अभी। So 3 elements are completed, so triangles are congruent। Triangle OAE is congruent to triangle OCF। okay, रिजल्ट हम कौन सा लिखेंगे, लुक राइट एंगल है, ठीक है, और 2 साइड्स हैं, तो मेक श्योर कि इन दोनों साइड में से कोई हाइपोटेन्यूज साइड तो नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 की ऑपोजिट साइड हमने OA ली हुई है, लुक ये OA और OC ली, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड है। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज साइड। सो ये हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड ली है, सो मीन्स के इट मेक्स HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। ये HS रिजल्ट है। जब भी आपका 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हो और उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 साइड्स आ रही हो, सो मेक श्योर कि इन दोनों साइड में से कोई अगर साइड H है, हाइपोटेन्यूज साइड है, सो हमेशा वो HS रिजल्ट से प्रूव हुआ है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल्स HS रिजल्ट से। H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज और S स्टैंड फॉर साइड, एनी साइड। ठीक है, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। When triangles are congruent, so means कि OE is congruent to OF, corresponding sides of congruent triangles। okay, ये congruent हो गए, OE congruent हो गया OF के, तो मतलब कि ये O से E का डिस्टेंस, O से F का डिस्टेंस ये कॉर्ड्स पे इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था कि when 2 chords are congruent then they will be equal distance from the center। so this is the center and they are equal distance। so result क्या आ जाएगा, that AB
and CD are equidistant from the center. From the center of a circle. ठीक, तो ये यहाँ आके ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Theorem 9.5. Two chords of a circle which are equidistant from center are congruent. Two chords, we have two chords A, B and C, D which are equidistant from center. So means कि ये center से equal distance पर है. Means कि O से E का distance, O से F का distance equal है. ठीक है. These distance are equal. Are congruent. तो means के chords के बारे में कह रहे हैं कि whenever a chords are equidistant from the center, they are congruent. ये prove करें. तो ये totally converts 9.4 theorem का. उसमें हमने ये prove किया था कि when two chords are equal, then prove they will be equidistant from the center. अब इस theorem में क्या है कि two chords of a circle which are equidistant from the center, prove they are congruent. So start करते हैं given से. So given में again a circle with center O, a circle with center O, and A, B and C, D are two chords. A, B and C, D are two chords. और ये क्या है? That they will be equidistant from the center. तो center से उसका distance equal है. ठीक है. So means के ये यहाँ से इस chord तक का distance अगर equal है तो means के ये perpendicular already है यहाँ पर given में. ठीक है. So means के OE जो है वो perpendicular है AB पे and OF जो है वो perpendicular क्योंकि distance given है. ठीक है. So OF is perpendicular on CD. और दूसरा क्या है? And OE is congruent to OF. के इसका डिस्टेंस इक्वल है chord से सेंटर का. ठीक. ओके. प्रूफ क्या करना है? chords are congruent. So to prove आ जाएगा chords are congruent. Where A, B and C, D are two chords means A, B is congruent to C, D. ये हमने प्रूफ करना है. ओके. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? इस O को A और C से ज्वाइन कर देंगे. वही बात कंस्ट्रक्शन की आ जाएगी. सही. इसको हम ज्वाइन कर देंगे. तो ये चूंकि डिस्टेंस गिवन है इक्वल, तो ये 1 और ये 2 जो एंगल है ये 1 एंगल. ठीक है. और इसको हम कर देते हैं 2. तो बोथ आर 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है. ठीक है. तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ज्वाइन O to A and C. तो ज्वाइन O to A and C. ठीक है. O को हमने A और C के साथ ज्वाइन कर दिया. अब आते हैं प्रूफ की तरफ. ओके. अब यहाँ हम प्रूफ में क्या करेंगे? We take these two corresponding triangle. So triangle OAE corresponding with triangle OCF. Now make them congruent. तो उसमें हम ले सकते हैं that OA is congruent to OC. ठीक है. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये. So radii of same circle
Okay, angle 1 is congruent to angle 2. Both are right angles. Okay, and OE is congruent to OF. OE is congruent to OF. It's given. ये बात given में थी. So triangles are congruent. Triangle OAE is congruent to triangle OCF. Okay, यहाँ आप देखते हैं 2 sides और एक एंगल 90 डिग्री का है. तो लेट वी चेक कि क्या अगेन ये HS तो नहीं बनता. तो आप देखें H OA और OC H साइड है और OE वन साइड. So again it makes HS. So HS is congruent to HS. So triangles are congruent. When triangles are congruent, so we say AE is congruent to CF. Reason क्या आ जाएगी? Corresponding sides of congruent triangle. So it's corresponding sides of congruent triangles. Okay. Corresponding sides of congruent triangle बात आ गई. अब यहाँ अगर हम देखें तो AE जो है, this AE is a half of AB and CF is a half of CD. ठीक? Okay. As A is congruent to CF, अब डायग्राम देखें AE और CF congruent, where AE is a half of AB. ये हमारे पास रिजल्ट है. AE is a half of AB और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज OE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे. ठीक है, ये गिवन में था. OE जो है परपेंडिकुलर AB पे, सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो जब ये बाइसेक्ट करता है तो मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है. तो मीन्स कि ये जो AE है वो इस AB का हाफ है. ठीक है. एंड सिमिलरली CF इज अ हाफ ऑफ दिस CD. इसकी भी रीजन क्या आ जाएगी? बिकॉज OF इज परपेंडिकुलर ऑन CD. ओके, इन दोनों इक्वेशंस को अब चूंकि एज AE और CF इक्वल है, AE CF के इक्वल है, तो मीन्स कि इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी. सो 1/2 of AB is equal to 1/2 of CD because ये अब because AE is congruent to or equal to CF, so that's why इनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएंगी. ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा. सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट AB is congruent to या equal to CD. ठीक है. सो 2 कैंसिल कर दिया हमने. सो AB is congruent to CD. अब A और B और CD क्या है? These are 2 chords. इन 2 chords are रिजल्ट क्या आ जाएगा? Hence 2 chords are equal. So proved. रिजल्ट में आप लिख दें that 2 chords are equal. यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है. सो फर्दर वीडियोस चेक करने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू. कीप वॉचिंग.